हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. In continuation of case taking, in part 3, we will discuss about gynecological case taking and obstetric case taking. इससे पहले केस टेकिंग पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ pseudochronic disease and chronic diseases. In this video, we will discuss about gynecological case taking and obstetrical case taking. In our practice, in homeopathy, average 60 to 70% cases or patient is female, 60 to 40 to 30% male patients. Females like homeopathic treatment in all over India according to prevalence. In female case taking, in general introduction, we write name, age, address. Chief complaint, then in introduction, marital status is important because certain symptoms or complaints or disease not present in unmarried, only in married. So marital status in certain conditions we make confusion. अगर हम किसी महाराष्ट्रियन लेडीज़ को देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें ये मालूम नहीं होता कि 30, 32, 28 साल की उम्र में वो शादीशुदा है या कुंवारी. कारण कि मैरिटल स्टेटस मैरिड लेडीज़ का आइडेंटिफिकेशन यूपी बिहार में लेडीज़ जनरली अपने मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में ऐसा देखते हैं तो वहाँ नहीं पाया जाता है. तो फर्स्ट इज मैरिटल स्टेटस. अगर हमें नहीं मालूम है या झिझक होती है तो मैं अपने कंपाउंडर या दूसरे स्टाफ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ या डायरेक्ट पेशेंट से पूछने का तरीका होना चाहिए. सो मैरिटल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, ओल्ड बैचलर. Certain diseases arises in widow and certain conditions in divorce because mental status और स्थिति जो होती है मानसिक, दोनों में दो होती है. एक विडो का कारण आज शादी हुआ और 10 दिन के बाद एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड का डेथ हो गया. एक लेडीज जिसका शादी के बाद 2 बच्चे हो गए उसके बाद हुआ, और एक का शादी के 30 साल बाद यानी 50-55 बरस उम्र के में अगर वो विडो होती है तो तीनों स्थिति में मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होगी. दूसरा है डाइवोर्स. तो डाइवोर्स के कारण जो भी हो उससे भी उनके मानसिक स्थिति पर कुछ असर पड़ती है. और एक टर्म है ओल्ड बैचलर. ओल्ड बैचलर मीन्स अनमैरिड फीमेल at age of 40, 50 or 56 year. So term is old bachelor. तो मैरिटल स्टेटस की अगर जानकारी हो जाए तो हमें केस टेकिंग में और सुविधा होती है.
अगर लेडीज ओल्ड बैचलर है तो उससे सिम्टम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर, एवर्जन, एबोर्शन, डिलीवरी, मिसकैरेज, कंसेप्शन, ये सब के बारे में हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेनार्की, एज ऑफ मेनार्की, ड्यूरेशन, इंटरवल, साइकिल, क्लॉट, पेन और एसोसिएटेड सिम्टम्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सो ड्यूरेशन, मेनार्की, क्लॉट, इंटरवल, साइकिल and intensity of pain is vary in maximum cases. Menses of two females is not alike or duration or interval. Some has 28-day cycle, some has 29-day cycle. Or intensity of pain, it generally prevail according to age group except in cases of डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद ये ख़त्म हो जाता है, मीन्स एक दो इशू अगर हो गया, डिलीवरी हो गया तो ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस में ऐसे भी केसेस देखे कि उस लेडीज को भी है और उसकी लड़की उसको भी है जिसकी शादी हो गई, और फिर उसकी जो लड़की है उसको भी है, मीन्स इट मे बी हेरिडिटरी कंडीशंस। सो सिम्टम्स also vary according to conditions of the patients. Amount of bleeding, so amount of bleeding also important. So at present time, idea of bleeding or calculation of amount of bleeding, you calculate how many number of sanitary pad used per day or in total menstruation. Any changes in increasing or decreasing order in duration of menstruation. Some females has few years of menarche, menstrual period has 4 days, and after 10 year it becomes 2 days, after 30 year it becomes 1 day, increasing or decreasing order in duration of menstruation. Next is obstetrical history. So in case of obstetrical history, we ask only complaints related to obstetrical conditions. If patient is married or during age group of reproductive life. History of childbirth, normal delivery in home, home delivery or in hospital. If cesarean or episiotomy, so at present time episiotomy counted as or in normal delivery, cesarean longitudinal and transverse, two process, single or multiple. cesarean डिलीवरी भी एक या 2 बार, किसी किसी कंडीशन में ये 3 बार भी सीजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। ये डिपेंड्स करता है एबिलिटी ऑफ गन ऑब्स्टेटिशियन और दैट पेशेंट। नंबर ऑफ इशू, सिंगल, ट्विन, मल्टीपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे किसी को 3 बच्चे हैं तो तीनों 3 बार में एक बच्चे हुए, या एक बार में 1, दूसरे बार में 2 हुए। एक मैं पेशेंट देखा था, ही इज वर्किंग इन इंडियन सिमलेस,
उसके वाइफ को फर्स्ट बार एक लड़की हुई, सेकेंड बार में 2 लड़की, और 3 बार में 2 लड़की और 1 लड़का। सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ ट्विन इन इंक्रीजिंग नंबर। दिस इज रेयर केस, नॉट नॉर्मल, बट इट मे हैपन। सो सिंगल, ट्विन, मल्टीपल in increasing order or same order. So multiple or twin is generally hereditary character also. Next point is live birth। जितने जो जन्म हुए वो सभी के सभी जीवित हैं या स्टिल बर्थ या डेथ हुए या जन्म के बाद डेथ हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो हम पूछें, नहीं तो पेशेंट बुरा भी मान जाता है। एबॉर्शन हैबिचुअल, हर एक 3 महीने पर हो जाना, इंड्यूस्ड चाह करके कराना, बाई पिल्स, एलोपैथिक दवाओं के द्वारा, और एम्पिरिकल जो परंपरागत तरीके से घर गांवों में होते हैं। सो नेक्स्ट, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल कंडीशन, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। इससे पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री है या सर्जिकल हिस्ट्री। तो जनरली फीमेल के केस में शादी से पहले अगर कोई बीमारी हुई होती है तो भी वो लेडीज छुपा लेती है अपने हस्बैंड से। बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं कि अगर बीमारी अगर वो न छुपाए तो डाइवोर्स की स्थिति भी हो जाती है, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में आज के समय भी पाई जाती है। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, ये दोनों कंडीशंस। कभी कभी फीमेल अपने हस्बैंड के सामने या अपने सास या फैमिली मेम्बर के सामने अपनी पूरी बात नहीं बता सकती, इसलिए कभी कभी उसे अकेले में भी बात करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में पहले हस्बैंड से बात कर ले, फिर उसके वाइफ से, और कॉमन जो बात हो वो दोनों को एक साथ बैठा करके समझाना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री, प्री और पोस्ट मैरिज सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्वाइटर, इंसैनिटी, पर्सनल हिस्ट्री। मैरिज, अर्ली और लेट। Early marriage means marriage after 14 to 16 or 17 or up to 18 year of age. Late marriage after 30 years of age, or maximum 20 after 25 year of age. Double age एंड बिलो एज, सिंगल और मल्टीपल। डबल एज कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लेडीज़ जो फीमेल है उसका उम्र 20 साल और उसके हस्बैंड का एज 50 साल, ये भी अपने भारतवर्ष में देखा जाता है और दूसरे कंट्री में भी। बिलो एज, लेडीज अपने हैं 28 साल 30 साल की, लड़का है 20 साल का। बिलो एज, सिंगल और मल्टीपल, एक ही शादी है या डाइवोर्स या डेथ के बाद या किसी कारणवश से सेपरेशन के बाद दूसरी शादी हुई, तो उस केसेस में इन केस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस अगर उस हस्बैंड को था उसके द्वारा उस फीमेल को लगी तो फिर इस फीमेल से इसके हस्बैंड को भी हो सकता है। दिस इज चांस ऑफ द कंटामिनेशन, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेस। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिलेशन, सिंगल और मल्टीपल।
किसी एक के साथ है या एक से ज़्यादा के साथ। कभी कभी देखा जाता है अनमैरिड लाइफ में भी है और शादी के बाद भी है। एडिक्शन, जनरली ये माना जाता है कि जेंट्स एडिक्शन करते हैं, लेकिन फीमेल भी एडिक्शन करती है, जैसे गुटखा खाना, सिगरेट, बीड़ी या शराब। ये सब प्रचलन शहर से लेके देहात तक हर एक जगह ये मिलता है। कुछ क्षेत्रों में लेडीज पान खूब खाती है, पान मसाला। एलर्जी, किसी पर्टिकुलर पदार्थ, सब्सटेंस, केमिकल या मेकअप के सामान या श्रृंगार के सामान या कपड़े से उसको एलर्जी या हेयर डाई इन एनी फॉर्म में बी केमिकल, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स। इवन वेंटिलेशन ऑफ ओन होम, past illness before marriage, after marriage, congenital anomalies. Congenital anomalies means unicornuate uterus or lack of uterus or single kidney or undeveloped breast, may be unilateral or bilateral. Physical examination of the ladies. Alimentary system, any abnormalities in alimentary system, canal, nervous system, circulatory system, especially during pregnancy, hypertensive और थायराइड डिजॉर्डर इन फीमेल्स। दिनों दिन ये केस बढ़ रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। बिल्ट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। न्यूट्रिशन, उसका पोषण कैसा है, भोजन कैसा है। जनरली इंडिया में 70 to 80% लेडीज़ एनीमिक है। शहरी क्षेत्रों में ये कम है, देहात में ज़्यादा है। 10 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरेज नॉर्मल मान लिया जाता है। सो न्यूट्रिशन। स्टेचर, उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ईयर, नोज, थ्रोट, आईज, इडिमा। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड निपल, जेनाइटल्स, विजाइनल आउटलेट्स रिलैक्स्ड और स्मॉल। सर्विक्स कोनिकल और अल्टर्ड। यूटरस स्मॉल, डिस्प्लेस्ड, एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड। फोर्निक्स इंटीरियर, पोस्टीरियर, टू लैटरल्स, appendages, vaginal examination. Preparation of patient for examination. PV examination include consistency of cervix, vaginal canal, any stain on fingertips. External examination, internal examination, speculum examination and rectal examination or PR examination. Obstetrical examination includes inspection, palpation, various grip like fundal, pelvic, lateral grip, fetal auscultation, vaginal examination, digital examination, other examination, totality of symptoms, analysis of symptoms, evaluation of symptoms, provisional diagnosis, differential diagnosis, pathological and radiological findings in required cases, diagnosis, management of case, prognosis. After that, selection of repertory according to case, rubric formation, repertorization, selection of medicine, selection of potency, dose determination and follow-up. After that, case taking in female requires a special technique.
एक कहावत है कि बाझ जाने पर सूती का हाल, मीन्स जिस लेडीज औरत को स्वयं बच्चे नहीं हुए हैं, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, वह लेबर पेन, प्रेगनेंसी और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में प्रैक्टिकली उतना नहीं जान पाती है, समझ सकती, जो एक या दो बच्चों की माँ बनी डॉक्टर को मालूम होता है। इस दुनिया में रिनाउंड गायनकोलॉजिस्ट जितने हैं ऑल आर मेल, फिर भी फीमेल केस फीमेल डॉक्टर देखती है। राइटर्स डॉक्टर CS डा, AC दत्ता, ELABS और अदर पब्लिकेशंस और राइटर्स, जिनकी पुस्तकें इंडिया ही नहीं विश्व में भी चलती है। अब कुछ फीमेल्स राइटर और फीमेल डॉक्टर्स बुक्स लिख रहे हैं। इन डिटेल केस टेकिंग अबाउट गायनिक एंड ऑब्स्टेटिक्स और डिजीजेज about gynecology and obstetrics. If you want, you purchase the books Pocket Manual of Obstetrics and Gynecology by Dr. Ram Naresh Kumar, which is available personally or Indian Books and Periodicals Publishers, New Delhi, and Sure Success Prakashan, Bikaner, Rajasthan. If you read this book, then you think about in detail about this case taking process and diseases of females, including infant hygiene, with therapeutic utility. Thank you. If you have any suggestion, you send me. I try to reply in proper way. You like, share and subscribe this channel. Other suggestions for improvement is welcome. Thank you.